Okay. What did we discuss? We just saw some of the questions in the last class, right? So now we are going to extend our discussion to a little more topics. Okay. तो सबसे पहले एक बात याद रखो. Whenever I say work done by a force, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले I will try to check if the force is constant or not, right? So if the force is constant, my next step will be to check if the force is acting in the same direction as the displacement or not. तो अगर कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं, then I will use the formula W is equals to F bar dot S bar. बराबर no? Now depending upon the angle between force and displacement, I will be getting the work. एक और चीज़ I know that the work is a scalar quantity right now, so I will not be writing with W bar and any stuff like this. So work is a scalar quantity. It's simply the dot product of force vector and the displacement vector. That's it. समझ में आ रहा है? अब उसके बाद में what will happen if the force is a variable force, मतलब changing force continuously. So what do you mean by changing force? Changing force is nothing but the value of the force changes with respect to some other entity, like displacement बोल लो या speed बोल लो या time बोल लो या position बोल लो वगैरह वगैरह वगैरह. So if the force is changing with respect to displacement, I'll simply say that the W is nothing but integral of F dx. Right now, provided in this case the force and displacements are in the same direction. F and dx are in the same direction, right? Are in same direction. अगर ये भी सेम डायरेक्शन में नहीं है, so what I will say W is nothing but integral of F bar dot dx bar, है ना? It is only valid when the force is variable and the distance is constant or the displacement is constant, right? Now what will happen if both are variable? तो मैं क्या करूँगा? Simply I will say W is nothing but integral of df bar dot dx bar. अब यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर वेरिएबल्स लगा के मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, बट एनी हाउ इट्स नॉट यूजफुल फॉर अस, एनीवेज इट्स नॉट इन द डोमेन ऑफ आवर सिलेबस. तो द मैक्सिमम वी विल बी गोइंग इज टिल दिस लेवल. नाउ आफ्टर दैट आई वांट यू टू फोकस ऑन सम अदर टर्मिनोलॉजी सच एज वर्क डन इन अ गिवन पाथ. ठीक है, चलो देखते हैं. अब अक्षर, इमेजिन आई हैव अ सिचुएशन जहाँ पे लेट्स से दिस इज़ अ सिंपल रोड. अब इनिशियली मेरे पास में एक ब्लॉक है, ठीक है. लेट्स से द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज m and I'm applying this force F on the block at an angle 60 degree to the horizontal, right? तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, द ब्लॉक वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो ये जो ब्लॉक है हल्का सा ही ऊपर डिस्प्लेस कर गया. आराम से मैंने फोर्स लगाया था तो ब्लॉक अभी फाइनली इधर में आ गया, ठीक है. 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल था. मान के चलो ये जो लेंथ आई है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसको मैं बोल रहा हूँ S1. S1 इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट अक्षरा. आफ्टर सम टाइम व्हेन आई सॉ, अभी मैं वापस से फोर्स को नीचे लेके आ रहा हूँ. अब मैं फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगा रहा हूँ. नाउ द ब्लॉक इज ऑल्सो मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इटसेल्फ. सो लेट्स से दिस इज माई फोर्स F2, दिस इज माई फोर्स F1, राइट. अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, लेट्स से दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्रीज. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, द ब्लॉक हैज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F2 एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द ब्लॉक इज ओवर हियर. तो इनिशियल पोजीशन इधर था, फाइनल पोजीशन इधर आया. यू हैव अंडरस्टूड द होल सिनेरियो. इनिशियली द फोर्स F1 वाज एक्टिंग कुछ देर के लिए till the displacement S1 is covered, the force F1 has stopped. Now the force F2 is acting on the block and it is making the block come down, and finally the block is reaching the horizontal level again, right? Now I have to find the net work done on the blocks. So the net work done क्या है अक्षरा, बोलो. F1 plus F2. तो फोर्स हो गया ना. तो कृष्णा इस पाथ के लिए वर्क डन क्या होगा बता सकते हो? यहाँ से यहाँ तक के पाथ के लिए फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर. डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है ब्लॉक का? ऊपर. क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है? Yes. सो इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. आप दूसरी चीज चेक करो, क्या फोर्स कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन? है, ठीक है. इट्स अ फोर्स F1. सो व्हाट आई विल से इज द नेट वर्क डन इज नथिंग बट F1 मल्टीप्लाइड बाय S1. तो ये आ गया पहला वर्क. ये तो हो गया पहला वर्क ना, W1. अब प्लस इसके अंदर W2 ऐड करना पड़ेगा ना. अंडरस्टैंड? W2 कौन सा है? ये वाला पार्ट के लिए. W2 का वैल्यू क्या होगा कृष्णा बता सकते हो? लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट इज S2 अगेन. F2 into S2. So this is nothing but plus F2 into S2. तो ये हो गया मेरा नेटवर्क डन. W net is equals to F1 S1 plus F2 S2. बराबर ना कृष्णा?
नाउ माय क्वेश्चन इज दैट अगर हल्का सा मैं S1 या S2 सॉरी S1 या S2 में अगर हल्का सा मैं डिस्प्लेसमेंट कराऊँ या चेंज कराऊँ तो क्या वर्क डन का एक्सप्रेशन भी चेंज होगा अक्षरा? Yes, sir. राइट. सो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई जस्ट हैव टू चेक अबाउट द पाथ. पाथ के ऊपर से यहाँ पे दो अपने पास नई चीज़ें निकलने वाली हैं. अब मेरे को एक बात बताओ सोमिया, ये जो वर्क आ रहा है नेटवर्क F1 प्लस F2 S2 सॉरी F1 S1 प्लस F2 S2, क्या ये जो नेटवर्क है इट इज़ डिपेंडेड ऑन द पाथ? मतलब अगर मैं S1 S2 के वैल्यूज़ को चेंज करूँ तो क्या वर्क डन भी चेंज आएगा? मतलब अगर मैं इसको और बड़ा करूँ, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ S1 एंड लेट्स से दिस इज़ द वैल्यू ऑफ S2, इनिशियल फाइनल पोजीशन में सेम रख रहा हूँ, आई एम नॉट चेंजिंग द इनिशियल इन द फाइनल पोजीशन. हाँ तो बताओ, अगर मैं इसको S2 बोलूँ तो क्या वर्क डन सेम आएगा या अलग अलग आएगा इस सिनेरियो के अंदर? F1 is the same, ठीक है. फोर्स रिमेन्स द सेम इन ऑल द सिनेरियोस. दिस इज माय फोर्स F1, दिस इज माय फोर्स F2. तो इनिशियली F1 S1 कितना आ रहा था? छोटा आ रहा था ना अक्षरा, चेक करो ना. S1 का वैल्यू छोटा था ना पहले, अभी S1 का वैल्यू बढ़ गया है ना. क्या बोल? Yes. तो अगर फोर्स के S1 के वैल्यूज़ बढ़ गए हैं तो फिर वर्क डन भी चेंज होगा ना, ऑब्वियसली. समझ रहे हो? सो अगर मैं मेरा हल्का सा भी पाथ चेंज कर रहा हूँ तो वर्क का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, वर्क का वैल्यू चेंज हो जाएगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, राइट. सो कैन आई से दैट इन दिस सिनेरियो द वर्क डन बाय मी इज नथिंग बट पाथ डिपेंडेंट वर्क, है ना? है ना? Yes. सो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो पाथ डिपेंडेंट वर्क है. तो बेसिकली अगर मैं पाथ को चेंज कर दूंगा तो वर्क भी चेंज होगा, राइट. नाउ वी आर गोना सी समथिंग कॉल्ड एज पाथ डिपेंडेंट एंड पाथ इंडिपेंडेंट फोर्सेस क्या होते हैं देखते हैं, ठीक है. चलो, try to understand the same situation I'm taking to you, ठीक है. बट इन दिस सिनेरियो द फोर्सेस आर नॉट चेंजिंग. मान के चलो मेरे पास में इनिशियली ये ब्लॉक मेरा रखा हुआ है यहाँ पे, लेट द मास ऑफ द ब्लॉक बी m ओवर हियर, और थ्रू आउट द मोशन ब्लॉक पे जो है कंटिन्यूसली द एक फोर्स एक्ट हो रहा है इन द राइट साइड. समझ रहे हो? ये फोर्स हो गया फोर्स इन द राइट साइड. अक्षरा, अभी ये फोर्स के जो है दो कंपोनेंट्स मैं निकाल रहा हूँ. द फर्स्ट कंपोनेंट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन और द सेकेंड कंपोनेंट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ये वाला. समझा तुमने? इन जनरल एक बात याद रखो, इस फोर्स की वजह से ना ये ब्लॉक ऐसे मोशन कर रहा है, रिजल्टेंट मोशन ब्लॉक का ऐसे हो रहा है. यहाँ पे आके रुक गया ब्लॉक, लेट्स से दिस इज द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक. अब कुछ देर के बाद में फोर्स देखो, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हैज़ नॉट चेंज सोम्या, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हैज़ नॉट चेंज्ड. तो अभी ब्लॉक क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है ऐसे, ये डायरेक्शन में आके नीचे रुक रहा है. तो टेल मी, थ्रू आउट द मोशन ये जो फोर्स लग रहा था वो किधर लग रहा था? राइट साइड में, ऐसे, बराबर ना. दिस वाज द फोर्स Fr एक्टिंग इन द राइट साइड. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट अगेन द वर्क डन बाय द एक्सप्रेशन. सो लेट्स से दिस इज द राइट साइड का फोर्स, और ये जो है एंगल थीटा पे लग रहा था. लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, और लेट्स से दिस एंगल इज 60 डिग्री. इट्स ऑल अप टू यू. सो लेट्स से दिस इज द एंगल थीटा. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन. अक्षरा, कैन यू टेल मी? तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट इज अगेन S1, दिस डिस्प्लेसमेंट इज S2. तो सबसे पहले क्या करेंगे अक्षरा, चेक करेंगे कि फोर्स किधर लग रहा है. फोर्स एक्टिंग इन द राइट साइड. डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ ब्लॉक का? इस मोशन के लिए, ड्यूरिंग दिस पार्ट ओनली. तो यहीं पे मेरा टारगेट रहेगा, यहीं पे ध्यान दे के सोचो. कैन आई से दैट थ्रू आउट द मोशन जो फोर्स लग रहा था वो राइट में ही लग रहा है, राइट ना? ऐसे ना. Yes, sir. तो ये जो एंगल रहेगा इन दोनों के बीच में कितना रहेगा? कांस्टेंट थीटा. थीटा थीटा ना, पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल है, देख रहे हो? अल्टरनेट एंगल्स है सारे के सारे, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है सारे के सारे, है ना? Yes. So all the angles are same, और at every single time the displacement of the particle is in along this direction. इधर भी displacement ऐसे है, इधर भी displacement ऐसे है, and every single time the force is acting in this direction. So this is F and this is also F. तो ये हो गए सारे फोर्सेस, ऊपर का हो गया सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो मुझे बताओ, एट एवरी सिंगल टाइम इफ द फोर्स इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट F जो राइट में लग रहा है, एंड इफ द डिस्प्लेसमेंट इज यूनिफॉर्म, मतलब कॉन्स्टेंट है, इनिशियल फाइनली हम रोक रहे हैं, नॉट वेरिएबल. तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, व्हाट विल आई राइट? द वैल्यू ऑफ W इज नथिंग बट, चेक करो. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कृष्णा, क्या ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है? No. नो. तो क्या करूँगा मैं? W इज इक्वल्स टू F बार डॉट S बार ना. Yes. समझ रहे हो? बराबर कृष्णा. तो यहाँ से क्या बोलूँगा मैं? W इज इक्वल्स टू F इंटू S इंटू, बोलो क्या लिखूँगा? कॉस थीटा, राइट. क्या थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है? तो पहले पाथ के लिए फोर्स कितना लग रहा था? F.
डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था टोटल डिस्प्लेसमेंट S1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा S1 cos थीटा, ये हो गया मेरा W1 फॉर दिस लेफ्ट पाथ। अब राइट हैंड साइड की पाथ भी मैं निकालना चाह रहा हूँ वर्क डन, तो वर्क डन के लिए अक्षर बताओ एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए राइट साइड में, फोर्स किधर लग रहा है थ्रू आउट द मोशन इन द राइट साइड, करेक्ट ना। तो एंगल कितना बनना चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ये वाला। टेल मी। F bar dot S bar. वेरी गुड, तो वर्क हो गया। एंगल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर अक्षर डाउनवर्ड्स ना, दिस इज माय फोर्स ना, Yes. ठीक है। सो इफ दिस इज माय फोर्स, मान के चलो ये भी एंगल मैं बना रहा हूँ थीटा, सो इफ दिस एंगल इज आल्सो थीटा, तो मैं क्या बोलूँगा ये एंगल भी कितना होगा थीटा ना, Yes. राइट। सो इफ दिस एंगल इज थीटा कृष्णा अगेन, तो चेक करो क्या फोर्स कंटिन्यूसली राइट साइड में लग रहा है, फिक्स्ड है। Yes. डिस्प्लेसमेंट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, सो मैं अगेन क्या बोलूँगा W2 निकालना पड़ेगा। कैन यू टेल मी व्हाट्स द वैल्यू ऑफ W2 कृष्णा, इट्स नथिंग बट F बार डॉट S बार अगेन ना, मतलब क्या बोलूँगा मैं, F बार का वैल्यू तो F है, थ्रू आउट द मोशन द वैल्यू ऑफ द फोर्स हैज़ नॉट बीन चेंज ना। सो F बार की जगह पे F लिख रहा हूँ, अभी S2 के जगह पे, यहाँ S के जगह पे क्या लिख रहा हूँ S2, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज द फोर्सेज आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, मैं क्या बोलूँगा अक्षरा Cos theta. cos थीटा, वेरी गुड, F इंटू S2 इंटू cos थीटा। सो मेरा जो नेट वर्क आना चाहिए W नेट इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 ना, Yes. सो इट्स नथिंग बट W1 का वैल्यू क्या है मेरे पास में F इंटू S1 इंटू cos थीटा, प्लस मेरा जो W2 का वैल्यू है इट्स नथिंग बट F इंटू S2 इंटू cos थीटा। कॉमन क्या लूँगा मैं यहाँ से, Cos theta. F और cos, F को भी लूँगा ना, F इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट ना। सो F cos Yes. थीटा मल्टीप्लाइड बाई इधर से आएगा S1 प्लस इधर से आएगा S2। यूँ कहना है यूँ कह लो, और यू कैन ऑल्सो टेक इट, सिर्फ F को कॉमन ले लो इधर से, तो F को अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा S1 cos थीटा प्लस ये आएगा S2 cos थीटा, समझा तुमने। Yes. सो दिस इज माई वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, सो आई कैन से दैट दिस इज द नेट वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द फोर्स। हाँ, नाउ इमेजिन द सेम सिचुएशन, ठीक है। तो पाथ, अब पाथ आ गया ना अक्षर इधर में, पहला पाथ कैसा था मेरा, ऊपर में गया अभी नीचे आया। नाउ इमेजिन द सेम थिंग, ठीक है, बट द ओनली थिंग इज दैट मैं अभी पाथ को चेंज कर रहा हूँ। मैं सिंपली पॉइंट, मेरा इनिशियल पॉइंट किधर था 1 ये ना, और मेरा फाइनल पॉइंट किधर था 2 है ना, ये ना। तो मैं 1 से 2 पे कैसे आया, पहले कुछ ना, मैं पूरा डिस्टेंस कवर करके ऊपर गया S1 डिस्टेंस, अब वापस मैं S2 डिस्टेंस कवर करके नीचे आया हूँ, और वो मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक। अब मेरे लिए शॉर्टेस्ट वे कौन सा पॉसिबल अक्षर है जाने के लिए, ये वाला ना, सिंपली ब्लॉक को ऐसे खींच के लेके जा, राइट। Yes, sir. तो अभी ये चला गया, तो मेरे को बताओ क्या चेंज आया अक्षर पहले वाले इस वाले में, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। मैं ब्लॉक को पूरा घुमा के लेके जा रहा हूँ और ब्लॉक को मैं सीधा लेके जा रहा हूँ, किस में चेंज है, Displacement. कैन आई से द पाथ इज डिफरेंट, Yes, sir. राइट ना। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिफरेंट, सो मे डिस्प्लेसमेंट इज द सेम, इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज आल्सो गोइंग टू बी द सेम। डिफरेंस किस में है, पाथ में है। तो पहले मैंने पहले पाथ से पाथ 1 पे गया था मैंने, सो दिस वाज माय पाथ 1। अब मैं पाथ 2 पे जाके निकाल रहा हूँ नेटवर्क कितना आ रहा है मेरा। अब पाथ 2 के लिए अक्षर बताओ, पाथ 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, कीप द सिचुएशंस टू बी द सेम। ये फोर्स F ही है, ये डिस्प्लेसमेंट S1 ही है, और ये डिस्प्लेसमेंट S2 ही है। तो अपन निकालेंगे नेटवर्क डन इन द पाथ 2 ना। तो चलो बताओ क्या आएगा अक्षरा, नेटवर्क डन इन पाथ 2, टोटल फोर्स कितना लग रहा है राइट में, F ना। Yes. हाँ, अभी डिस्प्लेसमेंट क्या ये फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में है अक्षरा। Yes, sir. तो क्या आना चाहिए मेरे पास, W इज इक्वल्स टू सिंपली F इंटू एस ना। Yes, sir. अब ये डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, आई डोंट नो दैट, राइट। अब डिस्टेंस का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा, कैसे निकालूंगा मैं, आई सिंपली ड्रॉप अ परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे वाले पॉइंट पे, दिख रहा है तुमको ये वाला। अभी ये लेंथ क्या था मेरा अक्षरा, S1. S1। तो ये वाला लेंथ कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, वेक्टर रेजोल्यूशन वाला कंसेप्ट लगाओ, क्या होगा ये, S1 cos theta. वेरी गुड। सो दिस इज लेंथ S1 cos थीटा, एंड सिमिलरली दिस लेंथ क्या आएगा सोम्या, S2 cos theta. वेरी गुड। सो दिस लेंथ इज S2 cos थीटा।
तो टोटल लेंथ क्या आ गई अक्षरा? S1 cos theta plus S2 cos S1 cos theta plus S2 cos theta is the total length. तो मैं क्या करूँगा सिंपली, अगर मेरे पास में फोर्स F कांस्टेंट लग रहा है, सो आई सिंपली राइट W इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड बाय नेट डिस्टेंस इज नथिंग बट S1 cos theta प्लस S2 cos theta. सेम आया है दोनों, चेक करो. दिस वर्क एंड दिस वर्क, आर दिस द सेम? Yes sir. Yes sir. सो व्हाट डिड आई फाइंड, यहाँ पे जो है मेरा वर्क डन जो है नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द पाथ, बराबर ना. तो भले ही मैं पाथ कुछ भी क्यों ना लूँ, लेकिन ओवरऑल जो मेरा वर्क आएगा, भले ही मैं ऐसे चला जाऊँ या भले ही मैं उसको ऐसे घुमा के लेके जाऊँ या मैं नीचे से ऐसे लेके जाऊँ या मैं घुमा के ऐसे फिरा के यूँ 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 करा के लेके जाऊँ, आई डोंट नो, एज लॉन्ग एज द सेम फोर्स इज एक्टिंग, ये वाला एफ आर, तो मेरा फाइनल आंसर विल बी द सेम. समझा तुमने? तो ये जो फोर्स है एफ आर, या इन जनरल इस सिचुएशन में जो फोर्स लग रहा है, मैं उसको क्या बोलूँगा, ये फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स ना. अंडरस्टैंडिंग? तो बिकॉज ये फोर्स के साथ में जो वर्क डन हो रहा है, ये एफ इन ब्रैकेट S1 cos थीटा प्लस S2 cos थीटा, ये फोर्स जो है अपने पाथ को के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. ठीक है, इसका जो वर्क है इसके पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा. सो मैं क्या बोलूँगा, ऐसे फोर्सेस को आई विल कॉल दीज फोर्सेस एज पाथ इंडिपेंडेंट फोर्सेस. समझा? पाथ इंडिपेंडेंट फोर्सेस, इंडिपेंडेंट फोर्सेस. तो ऐसे फोर्सेस को बोलेंगे पाथ इंडिपेंडेंट फोर्सेस. कौन से फोर्सेस होते हैं अक्षर? आइए, ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता. अंडरस्टूड? तो पाथ इंडिपेंडेंट फोर्सेस को ही एक और टर्मिनोलॉजी है अपने पास में, दीज आर कॉल्ड, और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कंजर्वेटिव फोर्सेस. समझा? अब इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, मैं तुमको बाद में बताता हूँ, बट फिलहाल के लिए याद रख लेना, पाथ इंडिपेंडेंट फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस, बराबर ना. एंड द सेकंड सिनेरियो इज, इन फोर्सेस को दूसरे, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो दूसरा वाला टाइप क्या होगा, डिपेंडेंट ना. सेकंड टाइप ऑफ फोर्सेस इज पाथ डिपेंडेंट फोर्सेस और पाथ डिपेंडेंट फोर्सेस. तो अगर इसको हम कंजर्वेटिव बोल रहे थे तो इनको क्या बोलेंगे हम, नॉन कंजर्वेटिव ना. सो दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेना, ये वाला जो दो फोर्सेस है ना, इन जनरल मान लो एक ही फोर्स है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है टाइम टू टाइम. तो अगर मैं इसको F1 ही बोलूँगा सिंपली, तो ये हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. हाँ, या इन जनरल इसको बोलेंगे पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स. अंडरस्टूड ना? अक्षरा समझा, नहीं समझा? और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसको मैं क्या बोलूँगा, पाथ पाथ डिपेंडेंट लिखा ना, सॉरी, इट्स पाथ डिपेंडेंट, या इसको नॉन कंजर्वेटिव बोलूँगा. दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स, और यू कैन ऑल्सो से कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, तो पाथ डिपेंडेंट फोर्स के रियल लाइफ से एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं तुमको. एग्जांपल इज माय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी. और इसका एग्जांपल क्या दूँ, फिलहाल के लिए ग्रेविटी याद रख लेना. नॉन कंजर्वेटिव के केस में तुम फोर्सेस याद रख सकते हो. फ्रिक्शन फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, कैन ऑल्सो से समटाइम्स द, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, याद रख लेना. स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव. देयर आर मल्टीपल फोर्सेस एक्चुअली में, बट ओवरऑल वी विल बी सीइंग एज द टाइम पासिस. तो फिलहाल के लिए तुमको ज़्यादा आइडिया नहीं है, मोटा मोटा तुम ये भी माइंड में रखोगे तो चल जाएगा. ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. समझ रहे हो? और यूँ कह लो कि द फोर्सेज एक्सटर्न अप्लाइड बाय मेजोरिटी, देखो मेजोरिटी एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्सेज अप्लाई करते हैं उनको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज बोलेंगे. समझ में आ रहा है? सो वर्क और फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट्स, फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट्स. अभी सब एग्जांपल्स देखते हैं. हाउ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स और पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स. ठीक है, चलो. सो लेट्स से दिस इज माय वेज. अच्छा, ये देखने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, टाइटल डाल लो,
वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी कह लो या ग्रेविटेशनल फोर्स कह लो, ऑल ऑफ द सेम। चलो बताओ अक्षरा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालूंगा मैं? सोम्या टेल मी। मान के चलो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kgs, या एम ले लेना। अब ये फ्री फॉल है, बस हवा के अंदर मैंने इसको पकड़ के रखा अपने हाथ से। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा अक्षरा, व्हाट विल हैपन? It will fall down. गुड। सो क्यों फॉल हो रहा है सोम्या? व्हाई इज इट फॉलिंग डाउन? Due to gravitational force. कितना लग रहा है? कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? Akshara, what is the gravitational force acting on this mass? mg. mg. mg is acting in the downward direction, ठीक है? तो what will happen? The block will fall down ना? So मान के चलो ये displacement हो रहा है block का, let's say this is the height h. तो tell me the direction of the gravitational force for me. Downwards. And tell me the direction of the displacement. Are they same? Downward. So what will be the work? Simply F into S, no? Yes, sir. So it's nothing but mg times Yes, S, right? समझा? This is the gravitational work. अब देखते हैं पाथ इंडिपेंडेंट कैसा है। ये सेम हाइट का मैं एक काम कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ वेज, ठीक है? और इसी वेज के ऊपर मैं चीज़ को, इस ब्लॉक को वापस से रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पे याद रख लेना फॉर श्योर, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, W इज इक्वल्स टू mgh, बराबर ना? नाउ इमेजिन आई हैव द वेज ऑफ द सेम हाइट। तो ये लेवल मैं पहले फिक्स कर लेता हूँ, लेट्स से दिस इज माय फिक्स्ड लेवल, और ये हो गया मेरा वेज, राइट? और इसी वेज पे मैंने ब्लॉक रखा है, लेट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी एनी रैंडम एंगल थीटा। सेम मास को मैं गिरा रहा था, अभी सेम मास को मैं इधर रख रहा हूँ, ठीक है? चलो लेट्स से मास इज m. नाउ टेल मी अक्षरा, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक राइट नाउ? अच्छा ब्लॉक नीचे जाएगा ना सुनिए? Just sin theta. नहीं, तो हाइट, ये हाइट h मान के चल रहा हूँ मैं, याद रखो दिस हाइट इज h अगेन। सो एवरी सिंगल टाइम द फोर्स ऑफ mg sin थीटा इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बराबर है ना? Yes, sir. अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो बताओ मेरे को, व्हाट्स द डिस्प्लेसमेंट? ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है ना अक्षरा? Yes. सो लेट्स से s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बताओ, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इस सिनेरियो में mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट है सेम डायरेक्शन में है? Yes, sir. तो व्हाट आई विल सिंपली से इन दिस सिनेरियो, w इज नथिंग बट f into s ना, सिंपली बात खत्म। अच्छा सबसे पहले ये बताओ, क्या दोनों पाथ्स अलग अलग हैं अक्षरा? पहला पाथ तो सिंपली स्ट्रेट लाइन है, दूसरा पाथ देखो अलग है ना? Yes. हाँ, तो अगर पाथ अलग है तो मेरे को बस चेक करना है कि वर्क अलग अलग आ रहा है या सेम आ रहा है। अगर वर्क सेम आ गया तो फिर ये पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स होगा ग्रेविटी, राइट? तो मेरे को वही चेक करना है, बस बात खत्म। सो यहाँ से W का वैल्यू क्या लिखूँगा मैं? आई सिंपली से W इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स का वैल्यू कितना है? mg sin थीटा ना, बराबर ना? mg sin थीटा लग रहा है ना ये साइड में, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट s। अब ये ट्राइंगल में चलो, बड़े वाले ट्राइंगल में, टेल मी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा सोमी। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस ना, तो अपोजिट साइड क्या है इधर से? h, हाइपोटेनस क्या है? s। S. So what I will do, I will replace s and sin theta. Can I directly say that the value of s is nothing but h upon sin theta? Yes, sir. Right. Now Yes, sir. substitute the value of s in this equation. So I'll say w is equals to mg sin theta as it is। अभी s की जगह पे क्या रखूँ मैं? h by H by sin theta. क्या कैंसिल आउट हो रहा है? Sin theta, sin theta, तो sin क्या है वर्क का वैल्यू? कितना आया? mg. पहले कितना आ रहा था? mgh. तो सेम आया, अलग अलग है? Same.
So even if I change the path, the work done is not going to change. समझा तुमको? Even if I change the path of the object, the work done by the gravitational force will not change. समझ रहे हो? अब वही हाइट अगर मैं h को फिक्स्ड रखूँ, इसी हाइट h के ऊपर जाऊँ मैं, और मैं ऑब्जेक्ट को मान के चलो कैसे भी फेंकूँ, कैसे भी, ठीक है, डज नॉट मैटर. ये इनिशियली इधर था ऑब्जेक्ट ब्लॉक. अब मैं इस ब्लॉक को क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक को मैं ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे घुमा के कैसे भी ऐसे ऐसे लेके जा रहा हूँ. अंडरस्टैंडिंग? अब यहाँ से मैं ऐसे घुमाया हूँ और फाइनली लिख जाके ये ब्लॉक यूँ घूमता हुआ नीचे जाके बैठ जा रहा है. देखो कॉम्प्लेक्स बात हो गया ना, लेकिन फिर भी इस केस में वर्क डन कितना होगा? mgh, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स. तो जितना हाइट तुम नीचे आए हो, जितना हाइट में चेंज आया है, उतना ही वर्क डन होगा उसमें. समझा अक्षरा? अब ये लाइफ टाइम याद रखना, ठीक है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट एंड mgh वेयर h इज द चेंज इन हाइट. तो मान के चलो दिस इज माई फर्स्ट बिल्डिंग, समझ रहे हो, और यहाँ पे कहीं पे मेरी सेकेंड बिल्डिंग है. अंडरस्टैंडिंग? द हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग इज h1, द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज h2. तो मैंने एक बॉल को जो है, ये बॉल हो गया मेरा, मैंने फेंका है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ में, हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ में. व्हाट विल हैपन? इट विल फॉल डाउन लाइक दिस ना. बराबर ऐसे ही गिरेगा. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे मेरा वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा, बता सकते हो? mgh. नहीं, इसमें तो प्रॉपर आंसर है. mgh कितना, h का वैल्यू क्या है? स्मॉल h लिखूं? mgh. mg mgh1. अक्षरा mgh1 आएगा. दिस हाइट इज h2, दिस होल हाइट इज h1. डिफरेंस कितने का है? चेंज इन हाइट क्या है? h2 minus h1 ना. Understanding? And that will be the work done. That is nothing but mg times of change in height, h2 minus h1. So this will be the work done by the gravity. समझ रहे हो? यहाँ पे भी चेक करो. फाइनल हाइट क्या थी? h. सॉरी, इनिशियल हाइट क्या थी? h. ज़मीन पे आके गिर गया तो फाइनल हाइट क्या हो गई? 0 ना. तो h2 minus h1 ही आएगा, h minus 0. Change in height, change in height. Can you understand this, all of you? So in this scenario, the work done is nothing but mg times of h2 minus h1. बराबर? Is it visible? Yes, sir. Not understanding this. Are you understanding this or not? Understanding, sir. Sure. Now I'm giving you a few more questions. Try to solve them. Okay. So the question states: find the work by the gravity. By the gravity. ठीक है. Initially my object was at height 0. मान के चलो इस हाइट पे था. The height was 40 meters from the earth. 40 मीटर से मैंने क्या किया, ब्लॉक को पहले मैं नीचे लेकर गया, ठीक है, फिर मैंने ब्लॉक को ऊपर लेकर गया, एंड देन आई टुक दिस ब्लॉक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अगेन. फिर मैंने बहुत ऊपर लेके चला गया ब्लॉक को मैं, लाइक दिस, ऐसे, राइट, और फिर मैं लेकर आया हूँ इस हाइट पे. सो दिस इज माई अर्थ, दिस इज द ब्लॉक, एंड द हाइट ऑफ दिस ब्लॉक इज, लेट्स से 10 meters. Mass of the block m is equals to 20 kgs. चलो बताओ, find the work done by the gravity. My first question, अक्षरा, क्या जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है ये पाथ पे डिपेंड करेगा? No. No. तो क्या देखेंगे हम? अगर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा तो फिर क्या देखेंगे? इनिशियल एंड फाइनल हाइट्स ना. Yes. इनिशियल हाइट कितना था? 40 meter. फाइनल हाइट कितना है? What is final height? 10 meter. 10 meters. तो मैं क्या करूँगा? सिंपली आई विल सिंपली से द वर्क डन इज नथिंग बट mg टाइम्स ऑफ चेंज इन हाइट.
बराबर ना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन हाइट, वर्टिकल हाइट। मास का वैल्यू कितना है, एम जी डेल्टा एच कितना होगा, निकाल सकते हो भी यहाँ से आराम से, Yes, sir. निकालो। 6 6,000. very good. Okay, so the work done is nothing but 6000 joules, right? Work done W is equals to 6000 joules, बराबर ना। कैसे आ रही है, सो इनिशियल हाइट एच आई इज इक्वल्स टू 40 meters, द फाइनल हाइट एच एफ इज इक्वल्स टू 10 meters, चेंज इन हाइट डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, क्या बोलूँगा यहाँ से बताओ, 30 meter. एच एफ माइनस एच आई, सो क्या बोलूँगा वही, दैट्स नथिंग बट 10 minus 40 ना, अंडरस्टैंडिंग। सो कितना आ रहा है, -30 meters, राइट। या इन जनरल चेक कर रहा हूँ कितना डिस्टेंस नीचे गया है वो, बराबर ना। डायरेक्शन याद रखेंगे, एच एफ माइनस एच आई इज नथिंग बट फाइनल हाइट इज 10 माइनस इनिशियल हाइट इज 40, सो इट्स नथिंग बट -30 meters। ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। कौन से डायरेक्शन में, -30 ऊपर के डायरेक्शन में, राइट। एच एफ माइनस एच आई निकाल रहा हूँ ना मैं, तो एच एफ माइनस एच आई किस में होगा, ऊपर के डायरेक्शन में होगा, राइट। सो क्या मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि इट्स 30 meter इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। फोर्स कितना लग रहा है, एम जी, मास इज 20, जी का वैल्यू इज 10, सो इट्स नथिंग बट 200 Newton in the downward direction again. Displacement and forces are acting in the downward direction, so I'll simply write W is equals to Fs, barabar, the value of force was 200, the value of distance or change in height was 30, so the work done is nothing but 6000 joules. समझा all of you? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, now it's called as conservative force। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, याद रखना, ठीक है। हो गया कृष्णा, तुमको समझा है नहीं समझा? समझा सर। चलो वेरी गुड। अभी ना मैं क्या कर रहा हूँ अक्षरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, अगेन आई एम गिविंग यू क्वेश्चन एंड आई एम आस्किंग यू, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास में क्वेश्चन लिख लो, ये आई हैव दिस हेमिस्फेरिकल बॉल, और स्फेरिकल बॉल ले लो ऐसे पूरा का पूरा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग। और इनिशियली मेरे पास में एक स्फीयर था, या मान लो एक मेरे पास में मार्बल थी, ठीक है। ऐसे कर लो, ऐसे बेटर रहेगा, ऐसे एक कर्व रूल लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्बल रखी है अक्षरा, द मास ऑफ दिस मार्बल इज m, ठीक है। ये एक स्फेरिकल रीजन या सर्कुलर रीजन है, मान के चलो। एक कैसे होता है ना तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, स्लाइड ना, स्लाइडिंग बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं कृष्णा, व्हाट डू वी कॉल इट? किसको सर? ये वाले शेप को स्लाइडिंग सरफेस ना। यस। हाँ, तो इमेजिन इट्स अ स्लाइडिंग सरफेस। हाँ, द रेडियस ऑफ दिस स्लाइडिंग सरफेस, ये स्फेयर है, स्फेयर का कुछ हिस्सा मैंने उठाया है। स्फेरिकल रीजन समझते हो, सर्कुलर रीजन समझते हो, सो इट्स आर्क ऑफ द सर्कल मेकिंग द एंगल 90 degrees। सो दिस इज परफेक्ट हॉरिजेंटल एंड दिस इज परफेक्ट वर्टिकल, राइट। सो द रेडियस इज आर, यहाँ पे भी द रेडियस इज आर, राइट। सो द रेडियस आर बोथ सेल्स, राइट। सो क्या होगा यहाँ से, इफ द बॉल रोल्स डाउन, क्वेश्चन इज दैट फाइंड द ग्रेविटेशनल वर्क, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, gravity as the ball rolls down। चलो बताओ कितना आएगा कृष्णा, डायरेक्ट आंसर बता सकते हो मुझे? See again I'll tell you the same thing, gravitational work is path dependent or path independent? इंडिपेंडेंट। So path independent के लिए क्या करेंगे हम अक्षरा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को देखेंगे ना। यस। तो इनिशियल हाइट कितना है उसका सोमिया? आर। आर।
और फाइनल हाइट कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 0 ना, समझ रहे हो? Yes. तो कितना आएगा वर्क डन? mg. mg, वो तो फोर्स हो गया ना. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी? चेंज इन हाइट कितना आया सोमिया? r minus 0 is r itself, right? So change in height is r and the gravitational force was mg. So work done कितना आएगा अक्षरा? mg. So the work done by the gravitational force is equals to mg r, right? समझा? Now I am taking you to a little more difficult question. इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे. आज का पूरा सेशन वी विल कीप इट फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स इटसेल्फ. सो इन दिस थोड़ा सा और इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ मैं. तो जो इनिशियल लेवल मैंने तुमको दिया था ना, अब वो इनिशियल लेवल में हटा रहा हूँ एंड आई एम टेकिंग अ जनरल रैंडम लेवल. ठीक है? सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगेन द सेम क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस सिनेरियो. ठीक है? चलो. So this is my curved path like this, huh? तो जो ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, इसको भी मैं आर ही मान के चलूँगा, राइट? थोड़ा सा रुक जाओ जरा ऐसे. सो लेट्स से दिस इज माय कर्व्ड पाथ. राइट? लिटिल कर्व पाथ है यहाँ से. अब मैंने बॉल को रखा है यहाँ पे एट अ रैंडम डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट पे. ठीक है? दिस इज द सेंटर ऑफ दैट कर्व. ये वाला, दिस इज द सेंटर. ठीक है? Again I am saying the distances or the radius of the curve is r again, but now at this time the object is placed at an angle theta from the vertical. या हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा ले लो, ऑल ऑफ टी. ठीक है? अब बिल्कुल थीटा पे रखा है. अब फाइंड आउट करो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द ग्रेविटी. अगेन द सेम सिचुएशंस, मास ऑफ द बॉल इज m. द क्वेश्चन स्टेट्स फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स. करेक्ट ना? चलो, विल यू ट्राई और शुड आई डायरेक्टली टेल यू द आंसर? mgr cos theta. mgr cos theta. Are you sure? So tell me Akshara, is the gravitational force work path dependent or path independent? Path independent. ठीक है? अब यहाँ से ना आई विल नॉट बी यूजिंग पाथ इंडिपेंडेंट और पाथ डिपेंडेंट, आई विल बी यूजिंग कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव. तो जो वर्क पाथ इंडिपेंडेंट, जो फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना, उसी को मैं कंजर्वेटिव फोर्स बोलता हूँ, राइट? तो टेल मी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? Conservative. So the gravitational force is a conservative force. तो मैं क्या करूँगा? The work done by the gravitational force will only depend on the initial and final situations, right? Yes. So मेरा अर्थ का लेवल किधर है? अर्थ का लेवल ये रहा मेरा, राइट? दिस इज माई हॉरिजॉन्टल लेवल. अब मेरे को इनिशियल हाइट कैलकुलेट करनी है. सो इनिशियल हाइट किधर है मेरा? ये ना, अंडरस्टैंड? Yes. सो दिस इज माई इनिशियल हाइट एच आई, राइट? सो मैं अब फाइनल हाइट एनी हाउ जब ये बॉल अर्थ पे रिटर्न करेगा तो फाइनल हाइट कितना होगा इस ऑब्जेक्ट का? 0. सो एनी हाउ एच एफ इज गोइंग टू बी 0. अब एच आई का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है. आई नो दैट द टोटल हाइट, दिस, ये टोटल डिस्टेंस कितना है अक्षरा? R. आर, राइट? अब उसके अंदर से अगर मैं बाय एनी चांस ये वाला डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो क्या वही मेरे को मिल जाएगा एच आई का वैल्यू? Yes.
sir. अब ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं? यहाँ से फाइंड आउट करूँगा। चेक करो, ये ट्रायंगल मैं कंस्ट्रक्ट करा रहा हूँ। सो दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, दिस एंगल इज थीटा, दिस होल लेंथ कितना आएगा अक्षर यहाँ से यहाँ तक का? mg cos theta. लेंथ 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 पूरा स्फेयर है ना, ये सर्कल है ना, बन रहा है ना बड़ा वाला सर्कल, तो रेडियस है ना ये आर। वेरी गुड, सो आर इज द रेडियस। अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस इज अ लेंथ आर, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा? थीटा के ऑपोजिट है, थीटा के एडजेसेंट साइड ही है। Opposite. ऑपोजिट के लिए क्या लिखते हैं? आर साइन थीटा ना। Yes. तो ये लेंथ कितना आ गया सोनिया? आर साइन थीटा। अंडरस्टैंडिंग? पूरा लेंथ कितना था? पूरा आर था, तो एच आई का वैल्यू कितना होगा? इनिशियल हाइट R sin theta. नहीं ना, आर साइन थीटा थोड़ी होगा। आर साइन थीटा तो इतना हाइट आ रहा है बस ब्लू कलर में, पूरा हाइट आर है, उसमें से निकालो ना आर माइनस आर साइन थीटा। करेक्ट, इसी को मैं आर इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ। करेक्ट ना सोम्या? अब ये समझ में नहीं आ रहा तो चेक करो, ये ट्रायंगल ड्रॉ करो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, राइट? तो ये हाइट मेरे को पता नहीं है, एज्यूम दिस हाइट टू बी एक्स। बोलो सोम्या, साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा इधर से? एक्स अपॉन हाइपोटेनस आर ना, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ गया? ये आर डिवीजन में, उधर मल्टीप्लीकेशन में भेजो, आर साइन थीटा ना। Yes, sir. तो ये हाइट एक्स का वैल्यू मिला है मेरे को। टोटल लेंथ इज आर इटसेल्फ, हाँ, पूरा का पूरा रेडियस। ये देखो, ये आर लिखा है ना मैंने यहाँ पे, तो ये भी कितना आएगा? पूरा का पूरा आर आएगा, राइट? तो आर में से ऑलरेडी मैंने ब्लू कलर का लिख लिया है आर साइन थीटा, तो बचा कितना? आर माइनस आर साइन थीटा ना। Yes, sir. तो वो हो गया इनिशियल हाइट। अभी इस इनिशियल हाइट से नीचे घूमेगा बॉल, नीचे आएगा, यहाँ पे आके रुकेगा, तो फाइनल हाइट इज 0। सो इनिशियल हाइट इज आर इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, फाइनल हाइट एच एफ इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नथिंग बट इन जनरल एम जी इंटू डेल्टा एच, राइट? सो एम का एम, जी का जी, डेल्टा एच का वैल्यू क्या है? पूरा का पूरा ही है। अंडरस्टैंडिंग? तो डेल्टा एच इज नथिंग बट आर इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। समझे? Yes, sir. एम जी आर इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। So may you understood that? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we will be seeing one more example and then we will be stopping. ठीक है? Sure. So imagine I have this find the work done by gravity. ठीक है, अब इसका उसी पहले वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ, बस रिवर्स में ले रहा हूँ। ठीक है, द क्वेश्चन इज द सेम बट जस्ट इन रिवर्स। सो दिस वाज माय कर्वेचर, करेक्ट ना? अब ऑब्जेक्ट मैंने रखा है स्फीयर यहाँ पे, और मैं स्फीयर को धीरे 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 से ऊपर लेके जा रहा हूँ, लाइक दिस। ठीक है, तो इनिशियल इसका तो पोजीशन यहाँ पे था, फाइनल पोजीशन यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, लेट्स से द सेंटर ऑफ द कर्वेचर स्टैंड समथिंग लाइक ओवर हियर, यहाँ पे सेंटर ऑफ द कर्वेचर उसका दिख रहा है, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द वर्टिकल। इनिशियल पोजीशन किधर था इसका? यहाँ पे था, राइट? फाइनल पोजीशन किधर है इसका? यहाँ पे। बताओ, इनिशियल से फाइनल में लेके जाने के लिए इफ आई एम टेलिंग यू द रेडियस इज आर, what is the work done by the gravitational force in bringing the object from initial position to the final position? चलो बताओ, are you trying or should I directly tell?
चलो देखो, टेल मी अक्षर, इनिशियल लेवल किधर है, इनिशियल हाइट कितना है उसका? मैंने से इनिशियल हाइट आई एम सेइंग हाँ 0 ना, करेक्ट सौम्या, इनिशियल हाइट इज इक्वल्स टू 0। अब फाइनल हाइट मुझे निकालना है, सो फाइनल हाइट कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं? दिस विल सम ओवर हियर विल बी माई फाइनल हाइट h। क्या मेरे को h का वैल्यू पता है अक्षरा? No. तो कैसे निकालूंगा मैं h का वैल्यू? दैट इज द इशू राइट। कैसे निकालूंगा? इस ट्रायंगल की मदद से। दिख रहा है तुमको ये ट्रायंगल? Yes, sir. ओके, अब बताओ मुझे, अगर ये रेडियस r है, रेडियस का मतलब क्या होता है? ये सेंटर ऑफ द सर्कल O हो गया। अब पूरा का पूरा ये आर्क ऑफ द सर्कल है ना, तो इस सेंटर को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करूँ, सारे रेडियस r r r r है मेरे। दिख रहा है तुमको ये? Yes. तो ये भी रेडियस कितना होगा? r राइट। अब मुझे बताओ, अगर ये r है, टोटल फुल डिस्टेंस ये भी r है, तो मुझे ये हाइट निकालना है। तो इसके लिए मेरे को क्या, किसका ज़रूरत पड़ेगा? इस डिस्टेंस का ना। Yes, sir. तो बताओ, ट्रायंगल के अंदर द हाइपोटेन्यूज इज r, एंगल इज अल्फा, तो ये साइड कितनी आनी चाहिए? शॉर्टकट बता रहा हूँ, चेक करो अल्फा की एडजेसेंट है या अपोजिट है। R cos alpha. वेरी गुड, r cos अल्फा है बराबर। सो इफ दिस लेंथ इज r cos अल्फा, टोटल लेंथ इज r, बची हुई लेंथ कितनी आएगी अक्षरा? R minus वेरी गुड, तो मिल गया ना मेरे को हाइट का वैल्यू कितना आ रही है? r माइनस आर कॉस अल्फा। समझा? तो यहाँ से r ले लो कॉमन, बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फा। सो दिस इज माई फाइनल हाइट एच एफ। इनिशियल हाइट मेरा 0 था। तो मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है? नीचे से ऊपर. नीचे से ऊपर। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है? द डायरेक्शन ऑफ एम। ओके, सो टेल मी, फाइनल आंसर बताओ मुझे कि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? Opposite. ऑपोजिट। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? W इज इक्वल्स टू एफ बार डॉट एस बार ना। If Yes, the sir. forces are opposite, what can I say about the angle between the forces? Angle between the vectors. It's nothing but f cos theta, right? तो अगर मेरा फोर्स राइट में है और अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है, तो एंगल कितना हो रहा है इन दोनों के बीच में? 180. वेरी गुड। सो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। यू हैव टू रिमेंबर दिस, -1 यू हैव टू रिमेंबर दिस थ्रू आउट द डिस्कशन। सो एफ एस cos थीटा, दैट इज नथिंग बट एफ का वैल्यू कितना लिखूंगा मैं? mg ना। अंडरस्टैंडिंग? एस कितना है? हाइट, r इन ब्रैकेट 1 माइनस cos अल्फा बराबर ना, मल्टीप्लाइड बाय cos 180। सिंस cos 180 का वैल्यू इज -1, तो मैं क्या बोलूँगा? सिंपली इट्स नथिंग बट mg इंटू r इन ब्रैकेट 1 माइनस cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाय -1 बराबर ना। सो मैं क्या करूँगा? ये -1 को अंदर भेजो ब्रैकेट में, सो इट बिकम्स mgr 1 माइनस cos अल्फा का उल्टा हो जाएगा cos अल्फा -1, नेगेटिव 1 अंदर चला गया, राइट। दिस इज वाई आई टेल यू दैट अगर दो फोर्सेज आर एक्टिंग इन, सॉरी, दो वेक्टर्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वर्क डन विल बी नेगेटिव, राइट। फ्रिक्शन के केस में इट्स ऑलवेज वैलिड, याद रखो। तो फ्रिक्शन के केस में ऑलवेज द वर्क डन इज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, right now. So every single time the force and the displacements are in the opposite direction, I'll say the angle between them is 180 degree. cos 180 का value is -1 and I'll substitute that -1 और मेरे को मिलेगा the work done is always negative। समझ रहे हो? So always यहाँ से याद रखा करो कि whenever the force and the displacement are in the opposite direction, we simply write -fs, and whenever they are in the same direction, we write simply +fs, right? तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? क्विक रिवीजन बताओ मेरे को। चलो, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स, सोमिया? Are you there? Path independent force refers to a force, बोलो, whose work does not depend on the path ना, right? और path dependent force क्या होता है? ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंडेड हो। तो ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंडेड ना हो,
We call them path independent forces or we also call them the conservative forces, right now? So the best example in the case of conservative force is the gravitational force. तुम उसको किसी भी पाथ में लेके जाओ, उसका वर्क डन इनिशियल और फाइनल हाइट्स के डिफरेंस के उतना ही होगा. अंडरस्टैंडिंग. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स ले सकते हो, बिकॉज अच्छा एक मोटा मोटा चीज़ यहाँ से भी याद रखना. देखो, मेजॉरिटी ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेज जो भी रहेंगे ना, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे. समझ रहे हो? अभी कंजर्वेटिव का एक और डेफिनेशन है जो अपन कल के लेक्चर में देखेंगे. तो कंजर्वेटिव के लिए 2 दिन लगेंगे, नॉन कंजर्वेटिव के लिए 2 दिन लगेंगे, एनर्जी वर्क एनर्जी फार्मूला के लिए 2-4 दिन और लगेंगे. सो एटलीस्ट अभी 8-10 दिन चलेगा तुम्हारा चैप्टर ही. ठीक है? सो अराउंड 15-20 लेक्चर्स पॉसिबल रहेंगे. सो बी केयरफुल. तो उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो, कीप रिवाइजिंग द स्टफ. तो आज का लेक्चर आई होप तुमको समझा होगा पूरा का पूरा. ठीक है? सो इफ यू नॉट अंडरस्टूड इट, जस्ट रिवाइज इट वंस अगेन. एनी हाउ द लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ. ठीक है? Okay, so if you have any doubt, you can ask me, or else we can stop here for today.